Hello everyone, my name is Swapnil Yadav and I am currently working as a subject matter expert in content design in one of the leading edtech company of India. And I have also worked as a doubt solving expert for GATE and ESE. I am working in this current organization for last 1 year and approximately I have worked as a doubt solving expert for GATE and engineering services for 1 year. So I am having total 2 years of experience. Talking about my education, I have completed my MTech from NIT Bhopal in the year 2021. So the session was from 19 to 21, and I have completed my BE from mechanical engineering, that is my graduation in mechanical engineering in the year 2017. Meanwhile, in these 2 years, I have prepared for GATE and engineering services examination, GATE and ESE, and I have cleared GATE consecutively for 3 years. The reason I think I am fit for this internship program is that since I have started my career in the edtech itself, and I am having right now 2 years of experience. And also, I have been a part of this preparation journey, which give me an edge in understanding the importance of proper planning and mentorship. And I know how important it is to maintain a consistency and how a good content, or you can say a good teacher, influences or boosts your performance. Moving forward to the subject which I am interested in is thermodynamics, and I have prepared a content plan for the various topics that thermodynamics include for GATE. Okay, so the exam that I'm focusing for by when preparing for the content plan is GATE. I have listed down all the different topics that thermodynamics for GATE are having. So the the total time that I am taking for teaching the thermodynamics is 100 hours. I have distributed the total 100 hours the such that it will help you in developing a better understanding of the subject, and also I have given emphasis on the frequency of question coming from a particular domain. Okay, so that's how I distributed all the 100 hours like that. The main focus will be on these topics, as the most of the number of questions are coming from this area. If you talk about last 20 years of GATE, particularly in thermodynamics, this number of the marks will vary from 6 marks to 12 marks. Okay, so it will become something around 10% of total marks, which is 100 marks. So thermodynamics in particular is a very important subject, and majority of the questions are coming from these two topics, that are fixed first law for fixed mass and control volume, and second law. That's why I have given 50 hours for these two topics, and the rest of the topics are more about same of importance, but in that also basic concepts and thermodynamics and entropy are very much of importance, because it is very important to develop understanding of basic fundamentals, so that you will be able to understand rest of the topics. Okay, and another important thing is to develop an understanding of entropy, because majority of students are mostly uncomfortable with the topic entropies. That's why I have given 15 hours in this particular topic. Once you have developed the understanding in entropy, the questions are not that much difficult. I have seen that students are able to solve the question and get the answer, but they are not having the understanding of in what is entropy. That's why I have given 15 hours to that particular, so that you can develop a physical significance of what is entropy is. Prepared for the topic that I have prepared for today, I have prepared a short topic, that is systems surrounding boundaries, and I'll try my best that you will get a better understanding of what of systems surrounding boundaries in 2 to 3 minutes. I'll be explaining these topics in a mixture of Hindi and English, so that it will become more clear to you. First of all, we look into the definition of system. It says that a thermodynamic system is defined as the fixed mass or fixed region in space upon which study is focused. Okay, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सिस्टम की जरूरत पड़ी क्यों. कभी भी
यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस होता है, सो व्हाट हैपन इज, कोई सिंपल प्रोसेस भी है तो हमेशा ऐसा होगा कि उसमें मल्टीपल चीजें साथ में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ओके, एंड सपोज अ गैस इज फिल्ड इन इट. हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, ठीक है, और इसमें एक गैस भरी हुई है. अब होगा क्या, जब अगर ये पिस्टन किसी एक्सटर्नल, अगर आप ऐसा मान लो कि ये पिस्टन ना किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से जुड़ा है और ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो अब इसमें ना मल्टीपल चीजें बहुत सारी एक साथ हो रही हैं. फॉर एग्जांपल, इस पिस्टन में बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे, है ना, और हो सकता है इस गैस जो अंदर भरी हुई है अपना फेस चेंज कर रही हो, है ना, इस गैस में भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हो सकते हैं. हम इस सिलेंडर की स्टडी भी कर सकते हैं. अब होता क्या है, अगर हम सारी चीजों की स्टडी एक साथ करने जाए तो वो पॉसिबल नहीं है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और हम एक बार में एक ही चीज की स्टडी कर सकते हैं, जिससे वो स्टडी सिंपल भी होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है. इसलिए सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कि ऑल दो इतनी सारी प्रोसेसेस इस पूरे मैकेनिज्म में या इस प्रोसेस में हो रही हैं, हम अपनी स्टडी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना सिस्टम, मुझे इस गैस की स्टडी करनी है, ठीक है, तो मैं इस गैस को ना अपना सिस्टम मान लूंगा, ठीक है. एज सुन एज आई हैव कंसिडर्ड द गैस इनसाइड दिस पिस्टन सिलेंडर एज माई सिस्टम, then what is happening to the rest of the assembly, it will not be my focus, or it will not be my concern. Okay, I will be only dealing with the changes or the properties that are, or you can say the changes happening to this gas. हमने अगर इस गैस को अपने सिस्टम मान लिया तो अब हम सिर्फ इस गैस के साथ क्या हो रहा है जब ये पिस्टन मूव कर रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है. अगर हमें सपोज फॉर एग्जांपल फोर्सेस एनालाइज करने इस पिस्टन के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को अपना सिस्टम मान लेंगे, ठीक है. अब अगर जैसे हमने इस पिस्टन को अपने सिस्टम माना, तो अब उस गैस के साथ, जो नीचे गैस है उसके साथ क्या हो रहा है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रहेगा कुछ, ठीक है. हो सकता, होपफुली आपको थोड़ा अब क्लियर पिक्चर मिली होगी सिस्टम की. अब ना सिस्टम हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स मास और एक फिक्स्ड रीजन. अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है. ये फिक्स मार्क्स फिक्स रीजन है क्या. सपोज आपके पास एक रूम है, ठीक है, रूम है, आपने यहाँ पे दो कैमरे फिट किए, ठीक है. अब ये जो पहला कैमरा है ना, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये इसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, मोशन सेंसर है इसमें. और ये वाला कैमरा है, ये फिक्स्ड है, ठीक है. अब इस कैमरे की विजिबिलिटी अगर आप देखें, तो इस कैमरे की जो वो है विजिबिलिटी है वो इतनी है. मतलब इस एरिया में अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, इस वाले कैमरे में. इसको हम कैमरा 2 बोल देते हैं, इसको कैमरा 1 बोल देते हैं, ठीक है. अब ये वाला क्योंकि एडवांस कैमरा है, इसमें मोशन सेंसर है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंटर होता है, ये सीधा उसको ट्रेस करता है और उसकी मूवमेंट हर जगह, वो जहां भी जाएगा ना उसको ट्रेस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक गेट है, आप एंटर हुए, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हो गए तो आपको ये मोशन सेंसर वाला कैमरा कैप्चर कर लेगा. आप इस रूम में चाहे जहां भी घूमते रहेंगे, ये आपको ही ट्रेस करता रहेगा. तो ये एग्जांपल होता है एक फिक्स्ड मास का, कि हमने, हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या है, आप हो. आप अगर यहाँ से एंटर कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिस्टम हो. इस कैमरे ने आपको सिस्टम मान लिया, ठीक है. अब आप इस रूम के अंदर कहीं भी घूमेंगे ना, ये आपको ट्रेस करता रहेगा. तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये फिक्स्ड मास सिस्टम, क्योंकि आप एक पर्सन हो ना, आपका मास फिक्स हो गया. अब हमने आपके मास को फिक्स कर लिया, मतलब आपको फिक्स कर लिया. अब आपकी पोजीशन कोई भी हो, हम ये कैमरा सिर्फ आपको ही देखेगा, ठीक है. अब दूसरे केस की बात करो अगर आप, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये कैमरे ने एक एरिया फिक्स किया हुआ है. इसको इस चीज से मतलब नहीं कि रूम के अंदर कौन आ रहा है, ठीक है. अब अगर इस रूम के अंदर आप एंटर करते हो तो आप इस सिस्टम का पार्ट तब तक नहीं होगी जब तक आप इस कैमरे के रेंज में नहीं आती. जैसे ही आप इस कैमरे की रेंज में आए तो आप सिस्टम का पार्ट हो गए, ठीक है. तो इस कैमरे के लिए सिस्टम क्या है, ये इतना रीजन सिस्टम हो गया, ठीक है. क्योंकि ये फिक्स रीजन है तो हम इसको बोलते हैं फिक्स रीजन या फिर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है. क्योंकि हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम फिक्स कर लिया ना, कि अगर इस रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उसकी स्टडी करेंगे. अगर आप एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो तो उसको आप फिक्स मास बोल सकते हो, ठीक है. यही मैंने ये एग्जांपल से दिखाने की कोशिश की है कि इफ यहाँ पे जो सिस्टम लिखा हो, आप अगर इन दोनों डायग्राम को अलग अलग मत समझिए, ठीक है. ये दोनों डायग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही है. सिस्टम मतलब वो चीज यहाँ पे अंदर ये दिखा रहा है कि सिस्टम अंदर है
और सिस्टम कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, ये कोई गैस हो सकती है, या फिर ये कोई लीवर हो सकता है, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, now we will see what is surrounding and boundary. As we have seen earlier, that system is something on which our study is focused. Okay, so everything that is external to the system is surrounding. For example, in engine, if you talk about an engine, okay, if your system is the gas, or you can say the working fluid inside it, then the rest of the assembly of the engine will become your surrounding. Okay, that is the definition of surroundings. ठीक है, अगर हम पिछले एग्जांपल की जैसे बात कर लें, अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपका गैस आपका सिस्टम है, तो बाकी की जितनी चीजें ना वो सब सराउंडिंग बन जाएंगी। जो एटमोस्फेयर की एयर है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये सारा क्या हो जाएगा, आपका सराउंडिंग हो जाएगा। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री की डेफिनेशन होती है, इट इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अब देखिए हमारे पिक्चर में दो चीजें आ गई, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो अब इनको सेपरेशन, इनको जो चीज सेपरेट करती है ना, वो बाउंड्री होती है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल बाउंड्री हो कि जो दो चीजों को सेपरेट करे, बस हम इसको एक एज्यूम कर सकते हैं कि भाई हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली, उसके अंदर की जितनी भी चीजें वो हमारा सिस्टम है, और रेस्ट ऑफ द चीज आर सराउंडिंग। ओके, इट इज लाइक दैट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें दिखा रखी हैं। अब ये दोनों असेंबली ना सेम चीज दिखा रही है, ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा होगा ये डायग्राम अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें सेम सेम चीज पोर्ट्रे कर रही है। यहाँ पर हमें एक बाउंड्री देखने मिल रही है रेड कलर की, जिसके बाहर मैंने मार्क किया हुआ सराउंडिंग, और ये रेड कलर की बाउंड्री और सिस्टम। अब ये दोनों डायग्राम ना, चाहे मैं ये बना दूं चाहे मैं ये बना दूं, ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हमने जो अंदर की गैस है उसको सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब एक बार मैंने इसकी गैस को सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो मैं इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सिस्टम बनाया, यहाँ पे अंदर की गैस को लिख दिया सिस्टम। ठीक है, अब जो बाकी की असेंबली बची ना, उसको मैंने एज अ बाउंड्री ट्रीट कर लिया, क्योंकि ये इसको एटमोस्फियर से सेपरेट कर रही है ना, तो एक इमेजिनरी मैंने बाउंड्री मान लिया इसको, जो इस बाकी की असेंबली बच रही है। तो यहाँ पर बाउंड्री क्या हो गई, जो रेस्ट ऑफ द असेंबली बच रही, और बाकी का जो एटमोस्फियर है ना, बाकी जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, वो सब हमारी काय में आ गई, सराउंडिंग में आ गई। सो अगर मैं बात करूं इसी पर्टिकुलर डायग्राम की, तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो गया हमारा, वर्किंग फ्लूइड, और सराउंडिंग क्या होगी, रेस्ट ऑफ द असेंबली, और बाउंड्री क्या होगी हमारी, ये जो मैंने इमेजिनरी एक मान के रखा है यहाँ पर, जैसे मार्क किया हुआ डायग्राम। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो। थैंक यू।